like what we've seen in the past, in the last 5 6 months, tab the volatility is very extreme, and we see that metals, commodities, equities, other asset classes start to react in a very wild format. This is typically how gold and silver have been behaving and how crude has been behaving. Almost $120 ka high hit karke crude oil prices are closer to $70, $75 as we speak. Almost 30 5600 ka top se gold is around $4200. Silver from 120 has come down to 65, and copper, the stronger one amongst the lot, from 14,000 is now trading closer to 13,200, 300. तो कुल मिला के the act has changed the narrative in a very large way. And what happened in the last few days is, now we believe that ceasefire though is around the corner. It is more than likely that आज शाम को या late in the evening वो deal sign हो जाएगी, and we will all be uh, now settled in a mind कि at least war like situation तो take care of हो गई है. But what has happened because of the war has to be addressed. Because of this war, crude का पिछले साल का average was about $64 $65 WTI crude का, and for the first 5 months of the year it is around 93 $94. It's almost a 45 50% rise from what it was last year. Lot of commodities that we use in our daily lives, from commodity like from aluminum to copper to steel to crude to eating oil, vegetable oils, to paper, to all the consumables that we use, from plastics, have gone up significantly higher. And these are some commodities, or or we will have some proportion in the inflationary index, and that is why we see US inflation started to inch higher, Indian inflation started to inch higher. So two or maybe three con calls back, when or webinar back, we were talking about a possibility of a rate cut in 2026 or a possible pause. But today the narrative has changed. From a possible rate cut scenario, we moved to a pause last year or last month. And today we are talking about a possible rate hike in the year 2026. केविन वॉश जो फेड के नए चीफ बन के आए हैं, मार्केट ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि उनके आते ही वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के साथ नैरेटिव डिलीवर करेंगे. नॉट ओनली जस्ट द मार्केट, इवन वी बिलीव कि फर्स्ट फेड मीट है, थोड़ा सा कूल ऑफ इम्पैक्ट रहेगा, थोड़ा सा पॉज लेके गाइडेंस देंगे. बट दिस टाइम अराउंड he was in a different mode, and lot of fed members were along with him to talk about a possible rate hike scenario in 2026 and further rate hikes in 2027. Historically, जब जब rate hike हुआ है, we've seen a lot of changes in the macro front. बट दिस टाइम अराउंड वॉर का फियर से बढ़ के एक फियर जो डेवलप हो रहा था कि इन्फ्लेशन किस तरह से बढ़ जाएगा, एंड सेंट्रल बैंक्स को बैलेंस शीट किस तरह से ट्विक करनी पड़ेगी. Central bank buying continues to remain very robust. They have been buyers of gold, of certain commodities in a very large extent. बट ये जो स्लाइड आपके स्क्रीन पे दिख रही है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. हमें एक ही चीज समझती है, वॉर मतलब डर, और डर मतलब गोल्ड ऊपर. बट इस बार वैसा नहीं हुआ है. इस बार मार्केट ने डर को प्राइस इन किया है ऑयल के फॉर्मेट में, एंड ऑयल मूव्ड अप सिग्निफिकेंटली. तो वॉर वॉर के साथ ऑयल ऊपर, ऑयल के साथ इन्फ्लेशन ऊपर, फिर यूएस ट्रेजरी में किस तरह से, या यूएस फेड किस तरह से रेट को ट्विक करेगा, इसके ऊपर चर्चा होने लगी. डॉलर बिकेम स्ट्रॉन्गर. what was looking like a de-dollarization theme, what we were talking about for the last many months, suddenly took a back step. And today US dollar continues to remain very strong and is trading above 100 level for the last few days. Technically, how is it poised to go forward? We will be telling you as we proceed in the presentation. बट जभी भी यूएस रेट हाइक का अनाउंसमेंट करता है, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेसिव हाइक्स, डॉलर में स्ट्रेंथ आती है और गोल्ड प्राइसेस में करेक्शन आता है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग थ्रू एट दिस पॉइंट इन टाइम. ये जो 45 4600 से फॉल आके 4200 आया है, एंड प्रॉब्ली इवन लोअर लेवल्स, इज प्राइमरली बिकॉज मार्केट में कहीं ना कहीं रेट हाइक पॉसिबिलिटी फैक्टर इन होने लग गई है. जब जब रेट हाइक हुआ है, द फर्स्ट नी जर्क रिएक्शन विद कमोडिटी गिव्स यू इज a correction, a cool off, because we don't know how quickly the rates hike is going to happen, how fast it will be, and when is it going to pause. So ये तीन चार नैरेटिव जब तक क्लियर नहीं होते, तब तक एक रोलर कोस्टर राइड
चलता है in the history also in 1980s, 90s, 2000s we've seen that, and this is no different in 2026 we are again seeing this kind of a scenario. तो ये हिस्ट्री किस तरह से 1980s में, 2013 में, 2020 में, 22 एंड 26 हिस्ट्री इज टाइम एंड अगेन शोइंग दैट जब जब नैरेटिव चेंज हुआ है गोल्ड प्राइसेस ने किस तरह से रिएक्ट किया है। बट द लव फॉर गोल्ड इज इनएविटेबल। कितना भी महंगा होता गया है गोल्ड, वी कंटिन्यू टू अक्यूमुलेट एंड बाय गोल्ड। बट द प्रॉब्लम विद गोल्ड इज अगर वी डोंट हैव क्लैरिटी एज टू हाउ द फेड इज गोइंग टू बिहेव or the speed of rate hikes or cut, that is the time gold comes and bites us in a very to a very bad extent, and this is what exactly we are going through. Macro front pe what is happening, my colleague Manav will tell you in detail, and probably other commodities from oil to industrial metals I will be covering up during the course of the presentation. We have some technical insights also to highlight as to what technically we believe will be happen in some of these commodities over the next few months. So say Hello, everyone. Very good afternoon. Thank you so much, Navneet, for that start. And absolutely back to the classes है. अगर आप देखेंगे तो जो हम इकोनॉमिक्स में आज तक पढ़े हैं, जो हमने आज तक हमारे रिपोर्ट में कवर किया है, अगर कोई कैनवस सेशंस जिन्होंने अटेंड किया, आई थिंक वी ऑलवेज टॉक्ड अबाउट अनसर्टेनिटी इक्वल्स टू गोल्ड बाइंग, सिल्वर बाइंग एंड डॉलर इंडेक्स सेल. लेकिन डेफिनेटली जिस हिसाब का चेन ऑफ इवेंट्स अब हो रहा है, आई थिंक बहुत रेयर मोमेंट्स हमने देखे हैं वेयर दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड, वेयर war is leading to inflation, and that is leading to a rate hike expectations, supporting dollar and preventing gold and silver from rallying higher. अगर एक just covering the macro setups and macro events, एक चीज अगर आप हाईलाइट करेंगे, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द करंट वॉर एंड द प्रीवियस वॉर, क्योंकि प्रीवियस वॉर भी मिडल ईस्ट के आसपास ही थे. तो अगर आप देखेंगे तो रशिया, यूक्रेन, ईरान, हमास. तो रशिया यूक्रेन 2022 में हुआ, ईरान हमास 2023 में हुआ. वो भी मिडल ईस्ट के आसपास ही थे. वो भी एनर्जी को बढ़ा सकते थे, बट स्टिल इन दैट टाइम गोल्ड काइंड ऑफ रैलीड. एक जो डिफरेंस उस वॉर और इस वॉर में है कि वो वॉर जियोपॉलिटिकल या लैंड के ऊपर था. इट वाज प्योरली जियोग्राफिकल डिबेट, इट वाज प्योरली बॉर्डर डिबेट कि हमें तुम्हारी जगह चाहिए, हमें तुम्हारा बॉर्डर चाहिए, इन्वेजन्स है. एंड दैट इज वाई इट वाज प्योरली एन अनसर्टेनिटी लीडिंग टू अ पैनिक इन द मार्केट. लेकिन ये वाला जो वॉर है, इट इज प्योरली फॉर द फाइट ऑफ अ रिजर्व, purely for the fight of the energy. President Trump has very clearly mentioned कि he wants that control of the oil. उनके एक्शन से वो पता चलता है कि he is interested in taking Cuba. He has already invaded Venezuela, and now he is interested in a deal with Iran and possibly a control of Strait of Hormuz. तो अगर Strait of Hormuz का कंट्रोल आ जाता है प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास, तो he will have a light oil, that is a shale oil. He will have a thick oil, that is a Venezuelan oil, and also the supply of the Strait of Hormuz, almost 20% of the control. तो ये चीज़ें डेफिनेटली एक रिस्क प्रीमियम बढ़ाती ऑयल का, एंड यही चीज़ें इज लीडिंग अप टू इन्फ्लेशनरी रैली for the oil prices, and leading to a pressure in your gold and silver especially. Now एक और चीज है जो डेफिनेटली दिस इज काइंड ऑफ लीडिंग टू अ प्रेशर इन गोल्ड सिल्वर. लेकिन आपने अगर पिछले 1-2 महीने के फ्लोज अगर देखें, देयर इज वन मोर रीजन व्हाई गोल्ड एंड सिल्वर इज नॉट पिकिंग अप. अब डेफिनेटली ऑयल प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इन्फ्लेशन का एज अ इंडेक्स शायद थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा. वॉर हमने ये सीज फायर की न्यूज आते हुए देखे, इट इज नॉट कंक्लूसिव. रेट हाइक के एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन रेट हाइक हुए नहीं है. लेकिन इन सब के बावजूद भी देर आर अ फ्यू थिंग्स प्रिवेंटिंग गोल्ड एंड सिल्वर फॉर गोइंग अप. इज वन थिंग इज द ईटीएफ फ्लोज. अगर आप देखेंगे तो ईटीएफ इज समथिंग विच वाज अ वेरी डोमिनेंट फैक्टर इन 2025. 2025 में जो 70% की गोल्ड में रैली आई है एमसीएक्स में,
मोर देन 70%। उसमें बहुत बड़ा हाथ ETF के फ्लो का था, रिटेल पार्टिसिपेशन का था, CFTC पोजीशन का था, जहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे लॉन्ग्स बन रहे थे। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखेंगे, लास्ट 2 या 3 महीने से, स्पेशली फ्रॉम द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, जनवरी में इंडियन म्यूचुअल फंड की बात करूं, जनवरी 2026 में 24,000 करोड़ का हमने AUM देखा है गोल्ड में, प्योरली ऑन द बेस ऑफ रिटेल पार्टिसिपेशन, डोमेस्टिक फ्लोज, सिमिलर टू व्हाट वी सॉ इन द इक्विटी सेगमेंट। इक्विटी का पूरा सेगमेंट में हमने नॉर्मली 24,000 करोड़ देखा था, एंड गोल्ड फंड्स काइंड ऑफ बीट दैट। लेकिन फेब्रुवरी में आते आते दैट 24,000 बिकेम 11,000, देन इट बिकेम 5,000, एंड सरप्राइजिंगली टू योर नोट, लास्ट मंथ मई का जो महीना है, मई के महीने में वी हैव सीन अ आउटफ्लो ऑफ 700 करोड़। तो 700 करोड़ का आउटफ्लो देखा है। सिमिलरली सिल्वर में भी वी हैव सीन एन आउटफ्लो सिंस द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। तो फेब्रुवरी से लेके आज मई के महीने तक ETF में आउटफ्लो है। सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग, बहुत बड़ी स्टोरी है, लास्ट ईयर की थी, लेकिन सेंट्रल बैंक्स अगर आप देखेंगे 2022, 23, 24 में देव बॉट अबाउट 1000 टन्स, लेकिन 2025 में इतनी बड़ी रैली के बावजूद देव बॉट 800 टन्स। 2026 में फर्स्ट क्वार्टर में ओनली बाइंग इज अबाउट 230 टन्स। तो बाइंग है, लेकिन इट इज नॉट वेरी कंसिस्टेंट विद द पेस। लास्ट क्वार्टर एंड क्वार्टर अगर देखेंगे तो पेस काफी स्लो है। उससे बड़ा 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 हाथ है रशिया के सेलिंग का, टर्की के सेलिंग का, चाइना जो बाय कर रहा है उसका क्वांटम बहुत कम है। तो ऑल दिस इज लीडिंग टू अ स्लो डाउन इन डिमांड। सो एक तरफ रेट हाइक एक्सपेक्टेशन, एक तरफ वॉर जो इन्फ्लेशन बढ़ा रहा है, थर्डली द डिमांड इज वेरी लेस जो लास्ट ईयर थी। तो लास्ट ईयर की डिमांड ने बहुत हद तक फुलफिल कर लिया है अबाउट द एक्सपेक्टेशंस। तो ये सारी चीजें आर लीडिंग टू अ स्टॉपेज इन गोल्ड प्राइसेस। अब एक क्वेश्चन है कि सिल्वर प्राइसेस में ऐसा क्या हो रहा है। सिल्वर में अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली लाइक आई मेंशन, ETF फ्लोज आर नॉट दैट ग्रेट फॉर सिल्वर एज वेल। लेकिन अगर आप देखेंगे गोल्ड सिल्वर रेशियो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट सिंस अ लॉन्ग टाइम। लास्ट टाइम भी आई थिंक गोल्ड सिल्वर रेशियो के बारे में टेक्निकली हमने बात की थी। गोल्ड सिल्वर रेशियो फ्रॉम लास्ट टाइम 78 के ब्रेकडाउन के आसपास थे, वहां से ब्रेकडाउन आया, वी सॉ अबाउट अ 43 लेवल, एंड नाउ वी आर होवरिंग आउट 60। आई थिंक इस बार भी टेक्निकली वी विल हाईलाइट गोल्ड सिल्वर रेशियो, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर सिल्वर का पेस वो रेशियो जस्टिफाई करता है। लेकिन एक और चीज है इंटरेस्टिंग, अगर आप देखेंगे इतने सालों से हम डेफिसिट की बात कर रहे हैं कि सिल्वर में डेफिसिट है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। लेकिन इस बार का जो फॉल है, इस बार के जो नंबर्स है, उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि इवन दो देयर इज एन इंडस्ट्रियल डिमांड, सप्लाई इज काइंड ऑफ मैचिंग टू द पेस ऑफ डिमांड। मतलब लास्ट ईयर का 2025 का जो डेफिसिट नंबर है वो 117 फोरकास्ट किया था, लेकिन एक्चुअल नंबर वाज जस्ट 60 मिलियन आउंसेस। इस साल का फोरकास्ट इज क्लोज टू 60 मिलियन आउंसेस। तो जो डेफिसिट नंबर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो डिमांड है नो डाउट, बट देन सप्लाई एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन सिल्वर की जो रैली है कहीं ना कहीं थोड़ी पॉज ले रही है या कंसोलिडेशन में जा रही है। सिमिलरली वन मोर रीजन इज, अगर इंडस्ट्रियल मेटल्स की जर्नी देखेंगे, लास्ट ईयर वी सीन कॉपर आल्सो रैलिंग बाय अबाउट 50%। इस साल भी थोड़ी रैली देखी, बट वंस अगेन इट काइंड ऑफ पॉज्ड। बारी बारी से मेटल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन सिल्वर में जो जान आनी चाहिए इज प्योरली फ्रॉम अ गोल्ड पुश, एंड गोल्ड इज बिकमिंग साइडवेज। दैट इज ऑल्सो बिग रीजन जहां पे सेफ हेवन डिमांड इज काइंड ऑफ not very lucrative. And third big important reason is the inventory flow. इन्वेंट्री फ्लो फॉर सिल्वर इज वेरी शैलो। कॉमेक्स की इन्वेंट्री अगर आप देखेंगे कंटिन्यूस बेसिस पे निकल रही है, लेकिन सामने शंघाई की इन्वेंट्री बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सो दैट इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज ऑल्सो नॉट गिविंग एनी क्लियर डायरेक्शन फॉर द मार्केट। नाउ फेड के बारे में आई थिंक नवनीत काइंड ऑफ हाईलाइटेड। एक चीज बताना यहाँ पे जरूरी है दैट केविन वॉश हैज टेकन एन हॉकिश स्टांस एंड अग्रेसिव स्टांस। Clearly he's mentioned inflation fear, clearly he's mentioned कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। 18 फेड मेंबर्स है, 18 फेड ऑफिशियल्स है, उसमें से 9 मेंबर्स हैव क्लियरली स्टेटेड कि एक रेट हाइक तो होगा इस साल में।
दूसरे जो 6 फेड ऑफिशियल है उन्होंने एक से ज़्यादा रेट हाइक की पॉसिबिलिटी बताई है और सिर्फ एक ही मेंबर है जो स्टीफन मिरान है, एक ही मेंबर है उन्होंने रेट कट की बात की है। सो आउट ऑफ 18 इज जस्ट वन मेंबर टॉकिंग अबाउट रेट कट। सो यू सी द चेंज वेयर लास्ट ईयर 3 रेट कट हो गए, जनवरी फरवरी में रेट पॉज की बात हो गई एंड नाउ सडनली वी आर इन अ रेट हाइक पॉसिबिलिटी। तो दिस रेट हाइक पॉसिबिलिटी इज लीडिंग टू फर्दर फियर कि शायद जो ओवरऑल बायस है, ओवरऑल डायरेक्शन है, कंसोलिडेशन में रह जाए कि मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर ले कि एक रेट हाइक हो जाएगा एंड दैट इज व्हाई इन्फ्लेशन हेज की तरह जो मूव आना चाहिए आज वो शायद 2 महीने बाद आएगा कि गोल्ड रैलिंग एज एन इन्फ्लेशन हेज might happen maybe 2 months or 3 months down the line and maybe not now because now there's a rate hike fear. सो केविन वॉश के डिटेल्स उसके साथ साथ इफ यू सी हियर IMF के ग्रोथ फोरकास्ट आर कंटिन्यूसली डाउन, इन्फ्लेशन इज कंटिन्यूसली राइजिंग और सबसे बड़ा हाईलाइट आपने लास्ट 1-2 दिन के रिपोर्ट्स में देखा होगा इज द डॉलर इंडेक्स एंड यूएस यील्ड्स। अगर आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स इज नाउ अबव 101, यूएस 10 ईयर यील्ड्स इज अबव 4.5 एंड वन मोर थिंग, जापान का यील्ड्स इज क्लोज टू लाइफ टाइम हाइज जो लास्ट मंथ ही बने हैं। सो जापानीज यील्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक फ्रेंड्स बिकॉज अगर आप देखेंगे तो लास्ट वीक ही जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाया है। नाउ द इंटरेस्ट रेट इज 1%, फेड का इंटरेस्ट रेट इज 3.5%। तो आप देखेंगे पहले जापान नेगेटिव में था, यूएस का इंटरेस्ट रेट वाज 4.5%। नाउ दैट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल हैव ड्रॉप डाउन फ्रॉम 4% टू 2.5%। तो जो आर्बिट्राज करता था येन और डॉलर में बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल दैट हैज काइंड ऑफ रिड्यूस्ड। तो अब कोई फायदा नहीं है मेजरली फॉर होल्डिंग दिस आर्बिट्राज। तो स्लोली दिस विल अनवाइंड, this unwinding will also put in immediate pressure on मार्केट, लेकिन इवेंचुअली शायद और बाकी रिस्कियर असेट्स प्रेशर में रह जाएंगे और बाद में गोल्ड सिल्वर विल रैली। सो दैट इज अ सिनेरियो दैट कुड पैन आउट एंड डेफिनेटली वी हैव ऑलरेडी मेंशन कि इन्फ्लेशन ऊपर, ग्रोथ नीचे, अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर विल also lead a possibility of a stagflationary scenario जो शायद इवेंचुअली यूएस डेट को या यूएस के इंटरेस्ट रेट सर्विस को जस्टिफाई कर पाए। डेफिनेटली दैट्स अ लॉन्ग टर्म स्टोरी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेच, बट एज ऑफ नाउ दीज आर द फैक्टर्स जो एक कंसोलिडेशन में या एक ट्रांच में गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस को रखेंगे। फॉर फर्दर डेफिनेटली व्यूज वील वेट ऑन द टेक्निकल लेवल्स की क्या जर्नी रही है, क्या जर्नी आगे दिख सकती है, बट टिल देन we'll see how energy market and industrial metals market are looking from here. I'll pass it over to Navneet for that and let's see how that market is looking. थैंक यू मानव। एंड एनर्जी मार्केट में भी बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना डेवलप हो रहा है। वी हैव सीन एनर्जी प्राइसेस गो फ्रॉम 100 सो मे बी 65 लास्ट ईयर टू एज हाई एज ऑलमोस्ट 115 एंड नाउ बैक टू $75। तो ये हो क्या रहा है और कहाँ तक ये करेक्ट हो सकता है? क्या ये वापस $60-65 चले जाएगा? We say the answer is no. And why we believe that the answer is no is largely because we believe that डिमांड थोड़ी सी कम हुई है। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो डाउन देखने मिल रहा है। डिमांड विल बी स्लोअर, बट लास्ट टाइम अराउंड व्हेन वी वर एट 65, demand was almost say 103, 103 and a half barrel and supply was 108. Currently as we speak, demand is almost 102 and 102 odd and supply continues to remain at 102. सो ऑलमोस्ट डिमांड एंड सप्लाई पैरिटी के आसपास आ चुका है, जिसकी वजह से हमें दिख रहा है कि प्राइसेस में करेक्शन तो आ गया है, बट विल दे कंटिन्यू टू स्टे लो? इज दिस गोइंग टू बी अ न्यू फिनोमिना जहां पे क्रूड ऑयल प्राइसेस गिर के वापस $40-50 तक आ जाएंगे? वी बिलीव रियली नो। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हैज ओपन, ऑलमोस्ट 20% ऑफ द LNG ट्रांसमिशन जो होता था प्री वॉर लेवल्स पे वो आ जाएगा वापस, बट इट इज गोइंग टू टेक सम गुड अमाउंट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि आज ट्रीटी साइन होगी कल से सारे द्वार खुल जाएंगे एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्लोइंग ऑटोमेटिकली। अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी हैज बीन डैमेज्ड, इट विल टेक सम टाइम टू रिकवर। टिल देन द सप्लाई विल नॉट बी टू द सेम एक्सटेंट एज टू व्हाट वी हैव सीन इन द पास्ट। ऑल्सो ये जो सिग्नेचर होगा या जो ट्रू ट्रीटी होगी उसमें कहीं ना कहीं हिडन पॉइंट्स, हिडन एजेंडा रहेंगे जो एज ऑफ नाउ हमारे नॉलेज में नहीं है, बट दीज एजेंडाज विल हैव अ ओवरहैंग
ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज टू सम एक्सटेंट। अगर ऐसा कोई केविएट रहा कि एवरी शिप विल पास थ्रू ईरानियन एस्कॉर्टेड शिप, देन तो समझ लीजिए कि ये इमीडिएट रिएक्शन में आपको प्राइस में 8 से 10% का उछाल देखने मिल सकता है। बट अदरवाइज ऑल्सो प्राइस क्रैश होने के लिए एक अच्छा करेक्शन देख चुके हैं एंड यहाँ से मेगा डाउनसाइड कुछ नहीं है। टेक्निकल पैरामीटर्स में और कलीग विल बी एबल टू टेल यू कि कहाँ तक और नीचे जा सकता है। बट रिस्क रिवॉर्ड सेज दैट यहाँ से अगर कोई अच्छा खासा करेक्शन आता है, दैट शुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। एक ही फैक्टर है जो मुझे लगता है यहाँ पे इस कोर्स को डिरेल कर सकता है, इज इफ द फेड रेजेस रेट्स वेरी शार्पली। उससे क्या होगा कि अगर उन्होंने ग्रोथ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया, रेट्स को एकदम शार्प वे में बढ़ाया, तो ग्रोथ थोड़ी-सी स्लो डाउन हो जाएगी एंड डिमांड जो है वो थोड़ी-सी स्लोअर हो जाएगी। तो सप्लाई कहीं न कहीं स्टेबल रहेगी और डिमांड में अगर स्लो डाउन आया, तो ये जो पूरा अरिथमेटिक है, यहाँ पर प्राइसेज़ थोड़े से फ्लैटिश टू पॉज़ हो जाएँगे and the floor which could have been 75 $80 now will start looking towards 70 odd dollars. आई थिंक टेक्निकली वो आपको देख देख थोड़ी देर में हम बताते हैं, बट फंडामेंटली नैरेटिव ये है कि बहुत ज़्यादा मंदी की उम्मीद यहाँ से नहीं है एंड एनी करेक्शन सिग्निफिकेंटली फ्रॉम योर ऑन कुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय वंस अगेन। ये एक हमने टाइमलाइन क्रिएट किया है कि किस तरह से इवेंट अनफोल्ड हुए इन द मंथ ऑफ फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। इजराइल एंड यूएस के बीच में करीब 900 स्ट्राइक्स इन अ मैटर ऑफ 12 आवर्स। Iranian लीडर खमीनी वॉज किल्ड, देन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद किया, आईआरजीसी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, चाइना रशिया के बीच में एक वीटो साइन हुआ टू इशू वेसल्स फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, पाकिस्तान स्टार्टेड टू मीडिएट। पाकिस्तान के मीडिएशन के बाद में यूएस ने बोला कि भाई तुम अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद रखोगे तो हम भी उसमें एक नया ब्लॉकेड डालेंगे एंड देन फ्रॉम देयर ऑन द वोलेटिलिटी वेंट ऑन बीइंग हायर एंड हायर। Finally, on the 14th of June, there was a possibility of a of a pause scenario, and a MOU was signed and Strait of Hormuz ceasefire was formalized. And today, as we speak, almost we are on the verge of seeing a historical deal between Iranian chief and the US chief, जहाँ पर the full amount of the blockades which were done will open, but will the flow will be in the same fashion what it was previously is the question. Will there be any caveats, any charges, any detrimental factors which could change the course of the energy market for the next few weeks and months will be the factor to watch out for. जब तक उसका फाइन प्रिंट पब्लिक डोमेन में नहीं आ जाता है, वी आर होपफुल कि ऐसा कुछ ना हो, बट टिल देन देयर इज गोइंग टू बी अ ब्राइट पॉसिबिलिटी कि एनी मेगा करेक्शन कुड बी बॉट इनटू। Coming to industrial metal, it has been a very interesting time for the industrial metal pack. Why industrial metal pack has not reacted to the way copper, silver, gold, or crude has reacted to the war-like situation? Because some of these metals today are having actual physical demand. ग्राउंड लेवल पे फिजिकल डिमांड हैज बीन मैसिव। हमने टाइम एंड अगेन रिएटरेट किया है कि सोलर पैनल्स में कॉपर का यूज होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होता है, न्यू इक्विपमेंट्स जो बनते हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजी बन रही है, न्यू इक्विपमेंट बन रहे हैं, न्यू ट्रांसमीटर्स बन रहे हैं, न्यू पावर ग्रिड बन रहे हैं, इन सब जगहों पे मैसिव अमाउंट ऑफ कॉपर, मैसिव अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम, स्टील विल बी यूज। तो यहाँ पर सप्लाई बहुत एडिक्वेट नहीं है एंड द डिमांड साइड पुल इज स्ट्रॉन्गर एंड दैट इज वाई वी सी कि ना तो ये 50% 60% गिरे हैं और ना ये 30-40% बढ़े थे जब गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस इतने रैली कर रहे थे। So it's a gradual uptrend and it's a reasonable 8 to 10% correction from peak in accordance with what other commodities are doing. Now why this correction is because market थोड़ा सा slow down expectation को prepare कर रहा था, जिसकी वजह से हमने equity में भी cool off देखा, जिसकी वजह से हम base metal complex में भी देख रहे हैं। But now if the truth is actual and if things start to come back to normalcy, we will see a reasonable rebound in the commodities that are in front of your screen. कॉपर बीइंग द बिगेस्ट बेनिफिशियरी अलॉन्ग विद जिंक एंड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का स्टोरी तो कुछ और ही है। हमने इस साल में स्टार्टिंग जनवरी से लेके अब तक 25% का इंक्रीमेंटल रनअप ऑलरेडी एल्यूमिनियम के प्राइसेस में देखा था एंड पिछले 4-5 दिनों में कूल ऑफ भी 12-13% का आ चुका है। व्हाट लेड टू द रैली? बिकॉज एल्यूमिनियम इज वेरी 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 हाईली एनर्जी इंटेंसिव। बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी, कोल या एनर्जी यूज होता है फ्रॉम नेचुरल गैस टू क्रूड इज टू मेक एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का प्रोसेस होता है कि आप उसको पहले बॉक्साइट को
गला के एल्यूमिना प्रोड्यूस करते हैं और एल्यूमिनिया से एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑलमोस्ट 50% और 55% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम कम्स फ्रॉम एनर्जी। अब जब एनर्जी के प्राइसेस इतने सिग्निफिकेंटली बढ़ गए थे, तो एल्यूमिनियम प्राइसेस भी बढ़ने बहुत लॉजिकल था। एंड व्हेन एनर्जी प्राइसेस हैव कूल्ड ऑफ इन द लास्ट 1 वीक और सो, एल्यूमिनियम प्राइसेस भी कूल ऑफ हो गए हैं। तो they are very largely linked with aluminum prices. But to our surprise, demand from China has been very, very robust. In the last 3 months, China has been the largest manufacturer of aluminum. They have been manufacturing high, they have been importing high, and they continue to show robust activity in terms of aluminum. So it looks like यहाँ पर जहाँ पे एक तरफ सप्लाई थोड़ा सा टाइट हुआ है, where production could start once again, Chinese demand has been robust, and which continue to make me believe that any correction that we've seen today or in the last few days is an opportunity to buy aluminum from a medium term perspective. रहा सवाल इन्वेंट्री का, तो इन्वेंट्री हैज कम डाउन सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द पीक ऑफ जनवरी, एंड वी आर ईटिंग इनटू आवर इन्वेंटरीज एट दिस पॉइंट इन टाइम। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के बाद मे बी इट कुड स्टार्ट टू लुक बेटर फ्रॉम अ मैक्रो पर्सपेक्टिव। जिंक की स्टोरी ठीक ठाक है, इतनी भी बुलिश नहीं है जितनी कॉपर एंड एल्यूमिनियम में। बट फॉर द लास्ट मेनी webinars that you would have attended, we have always talked about positivity on zinc, and we've always advised कि SIP फॉर्मेट में जिंक बाय करते रहिए। हर मैसिव करेक्शन पे या हर 3-5 रुपया नीचे जिंक बाय करते रहिए, और हर 10-15 रुपए ऊपर लैडरिंग करके बेचते रहिए। एंड दिस इज वर्कड वेरी वेल फ्रॉम जनवरी टू नाउ। वी आर ऑलमोस्ट 25% in the money. Now similar stance can be done for aluminium also, because एक राउंड ऑफ वोलेटिलिटी या एक राउंड ऑफ zigzag मूवमेंट हम देख चुके हैं, एंड एनी फर्दर प्राइस करेक्शन could be an opportunity where one could start to accumulate in a staggered manner, and they will benefit out of the potential upside in the next few months in aluminum prices. Data center demand has been robust. जितने सर्वर लगेंगे उतना रैक्स में एल्यूमिनियम लगेगा, कॉपर लगेगा, स्टील लगेगा प्योर क्वालिटी, एंड केबलिंग के लिए डिमांड फॉर स्टील विल बी और कॉपर विल बी वेरी हाई। पावर डेंसिटी के लिए, एआई चिप्स के लिए, ये सब चीज़ों के लिए कॉपर यूज़ होता है। ग्रिड ट्रांसफार्मर में यूज़ होता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर्स बनाने में यूज़ होता है, एंड सप्लाई बॉटलनेक हैज़ बीन वेरी वेरी रोबस्ट। चाइना के तरफ से प्रॉपर्टी मार्केट हैज़ बीन अ बिग ड्रैग। So imagine if China property market over the next 1-2 quarters starts to improve, we will we will see a massive rebound, not only the property sector, uh, but also from the demand for say some of these industrial metals that we are talking about. स्टिमुलस 2-3 तरह से चाइना ने अनाउंस किए हैं, बट दैट हैज नॉट बीन एबल टू मूव द नीडल फॉर द प्रॉपर्टी सेक्टर। हाउएवर, अगर एग्जीक्यूशन थोड़ा लैग के साथ भी होता है, एंड इफ इट मेक्स सम सेंस ऑन द ग्राउंड लेवल, तो वी विल सी अ मैसिव अमाउंट ऑफ रिबाउंड। रीस्टॉकिंग ऑन डिप्स हैव बीन अ प्रोमिनेंट फिनोमिना। जब भी हमने प्राइस करेक्शन देखा है, चाइना स्मेल्टर्स हैव बीन रीस्टॉकिंग। पीएमआई नंबर्स ठीक ठाक है, एंड जीडीपी ग्रोथ हैज बीन इमेंस एंड हैज बीन रिपोर्टेड in the last few months, which continue to makes us believe that China is doing whatever it takes to revive their economy, in terms of PMI, in terms of GDP, in terms of policy execution, in terms of stimulus. थोड़ा बहुत हलचल देखने मिली है, एंड इफ एट ऑल एक क्वार्टर 2 क्वार्टर के अंदर इफ वॉट एवर वी आर थिंकिंग विल स्टार्ट टू गेट डिलीवर, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर द बेस मेटल कॉम्प्लेक्स particularly. Supply side issues have been very prominent for the last many. माइन क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, कॉन्सेंट्रेट का टाइटनेस है, परमिट्स फॉर गेटिंग न्यू माइंस आर गेटिंग वेरी वेरी डिलेड, एंड लास्ट 4 से 5 सालों में हमने कोई भी फ्रेश अनाउंसमेंट ऑफ न्यू माइंस फॉर कॉपर हैज़ नॉट बीन heard of, and that is going to be a very interesting story over the next 1-2 years. अगर ऐसा कोई नया माइन नहीं डेवलप होता है, the world will be short of copper, and it is going to be a very say volatile time for copper as a commodity in the next few quarters, because if there are announcements, there are new mines coming up, thoda bahut cool off aayega, but the kind of speed that we are consuming copper at, maybe by 2027-28 the world will be a lot short of copper than what it is today. Now textbook wise सिनेरियोज हमने एनालिसिस करने की कोशिश की है, एंड दीज आर नॉट प्रिडिक्शन, दीज आर सम सिनेरियो एनालिसिस दैट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग टू यू। फेड ने अगर रेट पॉज कर दिया, रेट हाइक नहीं किया, एंड दे टॉक अबाउट अ पॉसिबिलिटी ऑफ पॉज ओनली, इन्फ्लेशन थोड़ा सा स्टिकी रहेगा और फेड अपनी पॉलिसीज के साथ स्टिक करेगा, तो वी माइट सी
a soft landing in some of the asset classes that we are seeing, but it could be a positive, big positive for gold, silver, copper, aluminum and some other commodities. एनर्जी में हम प्राइस क्रिस्क इसलिए देख रहे हैं या प्राइस करेक्शन इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं फैक्टर कर रहा है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन पॉसिबली हो सकता है अगर रेट हाइक्स सक्सेसिव होगी तो. But if there is a pause, that risk will be taken care of and we might see a rebound in prices. In a bear case scenario, अगर फेड ने अपना रेट साइकिल जो पॉज कर दिया और मे बी टॉक अबाउट अ रेट कट और लेट हाइक अनाउंसमेंट आता है 2026 में, तो ग्लोबल डिमांड वीकनेस कंटिन्यू रहेगी. चाइना स्टिमुलस है जो थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर रहा है एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से नॉर्मल सी आ जाएगी फिर अगले 3-6 महीने में मार्केट में, तो कहीं ना कहीं सप्लाई भी थोड़ा सा एडिक्वेटली पॉइज हो जाएगा फॉर क्रूड ऑयल प्राइसेस. सो इन दिस सिनेरियो ऑयल प्राइसेस कुड बी नेगेटिव एंड बेस मेटल कुड बी अंडर प्रेशर एंड गोल्ड एंड सिल्वर कुड बी वॉलेटाइल टू पॉजिटिव. एंड इन अ बेस केस सिनेरियो जो हमारा प्रेफर्ड सिनेरियो है, we believe that there is a very bright possibility of this scenario getting into force or this scenario getting actually delivered. यहाँ पर थोड़ा सा रेंज बाउंड टू पॉजिटिव हो जाएगा. क्रूड प्रेशियस मेटल कंसोलिडेशन में रहेंगे. वी आर एट 4200. वी विल नॉट बी सरप्राइज इफ यहाँ से भी कूल ऑफ कंटिन्यू रहे तो. एंड मैसिव रिबाउंड अभी साइट में नहीं है. But the structural bid for copper and some of these commodity will continue to have an upper hand and these will look promising and will look to deliver handsome returns. तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है. प्रेशियस मेटल्स में कंसोलिडेशन हो सकता है, मे बी 4000 और 3800 और वॉट एवर ऑन द लोअर साइड. आई थिंक जिगर हु इज द नेक्स्ट प्रेजेंटर विल टेल यू हाउ टेक्निकली थिंग्स आर लुकिंग एट. एंड कॉपर कुड बी स्ट्रक्चरली बुलिश एंड एनी करेक्शन कुड बी बॉट इनटू. So the third scenario is our preferred scenario जहाँ पे rate hike will be delivered, possibility of successive rate hike in 2027 will be announced and showcased, and there will be some knee-jerk reactions, but eventually those all will be buying opportunities. Now with this, I would hand the presentation to Jigar and he will be taking it ahead from here on and giving you some insight as to how technically we believe this scenario is likely to end. I am here to take up all the questions that you want to ask for. Please pop it up in the chat box and we'll be answered. Happy to help you with answers. Thanks, Navneet and Manav, both of you. We have got some wonderful insights on the fundamental front. So I hope my screen is visible. Charts are visible. Okay. So guys, Sure. let us quickly move towards the technical part. And as we are seeing on the chart, so I think हमने काफी बातें की इन्फ्लेशन या यूएस का फेड के रिलेटेड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फ्रॉम rate cuts to pause and now from pause to rate hikes, right? So इस टॉपिक को आगे कवर करने के लिए इट इज बेटर टू सी कि डॉलर इंडेक्स क्या दिखा रहा है, राइट? सो वी हैव टू गिव सम टाइम ऑन डॉलर इंडेक्स कि डॉलर इंडेक्स में क्या मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है. सो एज यू कैन सी ऑन द चार्ट, दिस इज अ वीकली चार्ट फॉर यूएस डॉलर इंडेक्स एंड राइट. सो मैंने काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑलरेडी हाईलाइटेड. सो हियर यू कैन सी दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन where we can see that this is around say 100.50 level. So now since the year we can say since 2023, this level was a critical support area which we have seen as marked in green arrows, which was a critical support zone. From there we have seen a sharp rally towards 1110 and from there a steep corrective move, right? So we have seen huge volatility or moves in dollar index, but after lows of around say close to 96 half, we have again seen a good sort of recovery, but prices actually failed to break above this 100.5 levels, right? Now immediately as soon as in last session only when the rate hikes probability was announced, तो उस टाइम पे हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में एक शार्प रैली आती हुई दिखी और ये जो 100.50 का जो लेवल था विच वाज लाइक मार्केट वाज ट्राइंग और मेकिंग एन अटेम्प्ट टू ब्रेक आउट, बट वो हो नहीं पा रहा था. बट अगर कल के दिन में देखें वी सॉ दैट प्राइजेस of dollar index actually made a high of say around close to 101.12 and now currently trading at 100.75, right? So this is a confirmation of a breakout. Now let's see, today is Friday, तो वीकली ब्रेकआउट भी हमें मिल रहा है और आगे के फॉलोअप मोमेंटम में अगर ये प्राइसेस रैली कंटिन्यू करते हैं देन व्हाट कुड बी द पॉसिबल सिनेरियोज की रैली कहां तक जा सकती है. सो एज यू कैन सी द हॉरिजॉन्टल ब्लू लाइंस, दिस आर द रिट्रेसमेंट लेवल
तो अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू करता है, देयर इज अ वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दैट डॉलर इंडेक्स कुड मूव हायर टुवर्ड्स 102.80, व्हिच इज अ 50% रिट्रेसमेंट्स। और ये मोमेंटम और कंटिन्यू होता है, एक से ज्यादा रेट हाइक्स की प्रोबेबिलिटी होती है, इन्फ्लेशन के कंसर्न्स रहते हैं, then definitely the dollar index is like strongly recommending that it could move further higher towards say 104.50 levels, right? So this is the major level which we could see. Now what could happen in the precious metals अगर डॉलर इंडेक्स में ये रैली कंटिन्यू होती है तो? सो बिफोर गोइंग टू प्रेशियस मेटल्स, पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या सजेस्ट करता है। सो पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर रेशियो एक मेजर इंडिकेटर है ओवरऑल प्रेशियस मेटल्स की मूवमेंट के लिए। सो नाउ एज यू कैन सी आई हैव मार्क्ड अ हायर लेवल at around say 105.58. Now this was the level it was marked around say in the month of April 2025, 22nd of April. And in this same period if we see, तो गोल्ड के प्राइसेस की अगर हम बात करें इंटरनेशनल स्पॉट लेवल्स, तो वो 3400 के करीब चल रहे थे। अगर उसी पीरियड में हम सिल्वर, उस टाइम फ्रेम में सिल्वर की बात करें तो वो 34 डॉलर्स के करीब सिल्वर ट्रेड कर रहा था। सो व्हाट दिस इंडिकेट्स इज दैट गोल्ड सिल्वर का अगर हमें रेशियो समझना है तो एक सिंपल वे में समझते हैं, व्हेनेवर द रेशियो इज एट हाईएस्ट लेवल, गोल्ड सिल्वर विल ट्रेडिंग एट द बॉटम, राइट, इन द ईयर 2025 April. But as soon as we are seeing that from this peak, we have seen a sharp corrective move coming in the gold silver ratio, and it marked a low around say close to 4350. From there, we have again seen a recovery, right? So जब ये गोल्ड सिल्वर रेशियो ने लोज हिट किए थे, उस टाइम पे गोल्ड ने 5600 के करीब का लाइफ टाइम हाई हिट किया था। सेम वे सिल्वर हैड मार्क्ड हाई ऑफ से अराउंड क्लोज टू 121 से ऊपर का डॉलर स्पॉट लेवल्स पे, हायर लेवल्स पे हिट किया था। So this clearly indicates an inverse correlation with this gold silver ratio chart, right? Now what is the current scenario? अब immediate current scenario पे आते हैं। यहाँ पर अगर हम पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, then we have seen like a falling wedge sort of momentum and we have seen a breakout above say close to 61 62 levels. Now after that breakout market has already hit a high of say around close to 66, but उसके बाद दोबारा एक करेक्शन आया। नाउ द टेक्निकल पैटर्न में हमेशा ये होता है कि एक ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करने आता है प्राइस उस पैटर्न फॉर्म पे। दैट इज व्हाट वी हैव सीन अराउंड 60 61 द प्राइसेस रिटेस्ट द डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन एंड देन अगेन इट हैज स्टार्टेड गोइंग टू रिवर्स। नाउ अगर हम अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मोमेंटम इंडिकेटर दिखा रहा है कहीं ना कहीं कि भाई अभी का जो मोमेंटम है गोल्ड सिल्वर रेशियो, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी इट विल मूव हायर टुवर्ड्स 6750। तो जैसे मैंने पहले बताया, जब भी ये रेशियो इनवर्स कोरिलेशन के साथ चलता है गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस के साथ। सो नाउ अगर ये रेशियो 67 हाफ या 68 के लेवल पे जाता है, दैट मीन इट इज इंडिकेटिंग एन अपवर्ड मूव, एंड ऑन द आइदर साइड देयर इज अ वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि गोल्ड सिल्वर में थोड़ा करेक्शन और फर्दर आ सकता है। बट यस, ये मोमेंटम देखने के लिए बोलेंगे कि ये $2-3 का मोमेंटम है, बट नहीं, ये $2-3 का मोमेंट एक्चुअली गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में थोड़ा बड़ा स्विंग देता है, राइट? इन केस अगर ये लेवल्स भी ब्रेकआउट हो जाते हैं, ये जो रेट हाइक्स की प्रोबेबिलिटी या इन्फ्लेशन व्हाटएवर द फंडामेंटल सिनेरियोज आर, ये एज इट इज रहते हैं और करंट गोल्ड सिल्वर का जो रेशियो है ये रैली कंटिन्यू करता है, तो एज पर दिस पैटर्न फॉर्मेशन देयर इज अ वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि 78 के करीब तक जा सकता है। अगर इन केस इस लेवल्स पे गया, तो लेट अस नाउ मूव टू द गोल्ड सिल्वर के इंडिविजुअल चार्ट्स पे, जहां पर हम क्या प्रोबेबिलिटी के साथ देख सकते हैं कि गोल्ड सिल्वर कैसे ट्रेड कर सकता है, राइट? सो नाउ दिस इज द स्पॉट लेवल ऑफ गोल्ड चार्ट। एज यू कैन सी, जो मैंने बताया था कि 5600 का हाई किया था, राइट? सो 5600 के हाई से वी आर कॉन्स्टेंटली सीइंग अ लोअर एज लो लॉस फॉर्मेशन, और प्राइजेस का जो क्रिटिकल एरिया था वो 4370 4440 का जोन, दैट हैज ऑलरेडी बीन ब्रोकन। वी हैव सीन अ लोज अराउंड से क्लोज टू 4023 was the low। उसके बाद एक रिकवरी आई, बट अगेन इफ यू सी द हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइंस आर क्लियरली इंडिकेटिंग दैट प्राइसेस फेल टू ब्रेक अबव 4370 4440 लेवल्स, राइट? इस सीनियर में हमने देखा था कि गोल्ड सिल्वर रेशियो का अगर चार्ट देखेंगे तो वहां पर भी एक रिटेस्ट करने के बाद रैली वापस चालू हुई है अभी के लिए। सो दिस इज क्लियरली इंडिकेटिंग के प्राइसेस में यहाँ पर थोड़ा और प्रेशर आता हुआ दिख सकता है गोल्ड में। नाउ व्हाट कुड बी द लेवल्स वेयर गोल्ड कुड टारगेट? There is a possibility of downside, but downside looks very limited now because काफी हद तक हम corrective move दिख चुके हैं। Then 4000, very much close to 4000 could be the immediate support area जहां पर गोल्ड टेस्ट कर सकता है। तो जैसे कि अभी 4140 का लेवल्स चल रहे हैं, तो 120-140 का करेक्टिव मूव और भी पॉसिबल है। सो दिस को इनसाइड्स विद द गोल्ड सिल्वर रेशियो का चार्ट, जहां पर 67 हाफ
का जो टारगेट हम बता रहे हैं वो लेवल हिट कर सकता है। इन केस 78 तक की अगर प्रोबेबिलिटी जाती है तो गोल्ड कहाँ टेस्ट करेगा? तो वो पॉसिबिलिटी है कि 3900 की बिलो या 3800 के लेवल्स भी गोल्ड जा सकता है। नाउ टू चेक ऑन द एमसीएक्स चार्ट, अगर हम एमसीएक्स के चार्ट पे आ जाए, दिस इज अ गोल्ड डेली चार्ट ऑन एमसीएक्स, तो वी आर सीइंग अ ट्रायंगल ब्रेकडाउन। कल आज जो सुबह गैप डाउन खुला तो हमने देखा कि ये ट्रायंगल का ब्रेकडाउन मिला है, राइट? नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ये वीकली ब्रेकडाउन भी हो सकता है। अगर आज की क्लोजिंग हमें नीचे के लेवल पे मिल गई तो वी कैन से कि ये बहुत स्ट्रांग ब्रेकडाउन है और फर्दर करेक्टिव मूव आ सकता है। सो कंसिडरिंग ऑल दिस पॉसिबिलिटी सिनेरियोस, जैसे हमने गोल्ड के इंटरनेशनल स्पॉट लेवल्स के चार्ट देखे, तो हमें लगता है कि शायद 1,45,000 या बिलो लेवल्स और फर्दर गोल्ड में आ सकते हैं। 1500 से 2-3 हज़ार रुपए की करेक्टिव मूव और भी पॉसिबल है, बिकॉज एक ब्रेकडाउन मिला है, राइट? बट अगर गोल्ड में और बड़ा करेक्शन आता है तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड 1,40,000 के बिलो या 39,000 के करीब तक आएगा और वहां से एक एक्यूमुलेशन का जोन क्रिएट होता है। सो दिस कुड बी द शॉर्ट टर्म डाउनसाइड विच वी कैन एक्सपेक्ट। सो 1,39,000 140 के बिलो प्राइसेस अगर आते भी है तो बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं करेंगे। वहां से हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहां से खरीदारी का मौका मिल सकता है। अब यहाँ के लिए ब्रेकआउट के लेवल्स कहाँ पर है? तो 1,55,000 का लेवल अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि वहां से दोबारा एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड वी कैन अगेन सी द प्राइसेस कुड मूव हायर टुवर्ड्स 1,65,000। Well, thank you. And before we start the Q&A session, just to give you some heads up, मार्केट में कहीं ना कहीं ऑप्शंस का काम जो है वो बहुत एक्सटेंड तक हो रहा है एंड वी ऑल अंडरस्टैंड दैट ऑप्शन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्ले फॉर द डेरिवेटिव्स बिजनेस. But what has happened is for the last many months, commodity as a segment in options has got ignored. But let me tell you the beauty about commodities option segment. Commodity options are as liquid as the NSE segment. Uh, maybe far OTMs are not as liquid, but काफी सारी liquidity आपको नियर और थोड़े बहुत यहाँ के स्ट्राइक में मिल जाती है. And the playbook remains the same. Okay, it's nothing new as far as a expert or a professional trader has to think about while he's trading option. Call, put, strikes, premium, Greeks, everything remains the same, only the underlying changes. यहाँ पर आप बैंक निफ्टी के अगेंस्ट आप क्रूड, सिल्वर, नेचुरल गैस, गोल्ड मिनी, सिल्वर मिनी, क्रूड ऑयल मिनी, नेचुरल गैस मिनी, इन सब के ऊपर प्ले कर सकते हो. तो द प्ले बुक रिमेन सेम. सो इफ यू कैन ट्रेड एक्विटीज, I have no doubt that you cannot play commodity as an asset class. And माइंड यू इक्विटी का विंडो है जो सुबह 9:15 से 3:30 तक ट्रेड होता है, बट कमोडिटी मार्केट्स आर ओपन टिल 11:30 11:55 इन द नाइट्स. So you could continue to trade along with equities, or you could continue to trade this market beyond equities. It's your choice and call. To many of our HNI, Ultra HNI, and some of you all who are already in this call, we give you the facility to trade equity markets के बाद में to trade commodity markets. यानी कि expiry day, supposedly it's a Tuesday today, you are trading Nifty weekly expiry. Post 3:30 around 4 o'clock, we give you the limit to trade commodities also up till 11:30 in the night. And if it's a commodity expiry day also, or there's an expiry for crude oil, or supposedly like the one today for silver mini, or the like the one on Monday for Monday Tuesday for natural gas and copper, these are some of the days जहाँ पे आप multiple commodities and equity साथ में trade कर सकते हो with the same amount of capital, and we give that limit to trade. So आपका पैसा almost 2 बार चर्न हो सकता है. सुबह के सेशन में equities के अंदर, शाम के सेशन में commodities में चर्न कर सकते हैं. And I think many of the smart investors are already doing it. We have a full-fledged desk who's helping you to operate and generate trades for you. निफ्टी में जो चेंजेस है जिसकी वजह से ट्रेडिंग थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई आई वुड से, एंड यील्ड्स उतरे नहीं अच्छे बचे हैं, एंड मिनिमम लॉट साइज वैल्यू हैज गॉन अप सिग्निफिकेंटली हायर. पहले हर रोज एक्सपायरी हुआ करती थी, नाउ देयर इज ओनली वन वीकली एक्सपायरी. एंड स्मॉलर कैपिटल टिकट साइज वालों के लिए वहां पे कुछ खास राइटिंग अपॉर्चुनिटी या बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स मिल जाती है, बट राइटिंग अपॉर्चुनिटी बची नहीं है. But in commodity, everything remains unchanged except for the price of some of these commodities. Mini contracts are available, macro contracts are available, mega contracts are available, and possibility to make more money on the same amount of capital is also available. You can trade equity in the morning first half and commodity in the second half.
or you can take an analysis and see that if the same amount of capital is deployed in commodity, तो आपको बेहतर yield कहाँ पर मिल रहा है और बेहतर रिटर्न्स कहाँ पर मिल रहे हैं, and you can choose which of the asset class you want to trade. For the last many months, we've seen that commodity has become the asset class where a lot of clients are preferring, but nevertheless, take a chance and choose it for yourself and then decide what should be traded. So, almost 90% of the business that is happening on the MCX today is options business, and only 10% is futures business. And 70% market share से ज़्यादा हमने almost 95-97% market share MCX का है. There are two different exchanges offering commodities at this point in time. So NSE also is creating a mark in the market. We are trying to push trades on NSE expiry day also, but MCX is the dominant player and multiple expiries are available for trading. So our focus continues to remain on both these platforms. तो माइंड यू ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको 8 से 9 यूनिक और एक्सपायरीज और यूनिक ट्रेडिंग डेज मिलते हैं एवरी मंथ to trade in commodities as an asset class starting from the 10th of the month to the 30th of the month. In the last 20 days, you have about 10 trading such days where you can trade multiple commodities. This makes it an entire new segment, an entire new gamut of trading, say for option writing purpose, for option buying purpose, and say make manufacturing some strategies which are giving you reasonable amount of yield on the algo as well as on the naked directional front.